ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ امی، میں نے احمر بھائی سے شادی نہیں کرنی۔ وہ اس وقت اپنی ماں کے گھٹنوں کو پکڑے ان کے قدموں میں بیٹھی روئے چلی جا رہی تھی۔ آواز نیچی کرو، اگر تمہارے باپ نے تمہاری بات سن لی تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ پہلے بھی تمہاری بڑی بہن کی وجہ سے ذلیل ہو گئی ہوں، اب خدا کا واسطہ ہے تم مجھے ذلیل نہ کراؤ۔ ماں اس کے دل کی حالت سے مکمل طور پر انجان اسے قربانی دینے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کیسے بتاتی کہ اسے احمر بھائی سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے، اور اب تو احمر بھائی اسے پہلے سے زیادہ نفرت کرنے لگیں گے، کیونکہ اس کی بڑی بہن جو شادی کے دن بھاگ گئی تھی اب وہ اسے شادی کا جوڑا پہنا رہی تھی۔ امی، میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی، اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا۔ وہ خود کو مضبوط بنانے کی ناممکن کوشش کر رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے اس کا بازو پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گی اور پھر اسی کمرے میں تمہاری قبر بنا دوں گی۔ ان کا دل غم اور غصے کی وجہ سے بھرا ہوا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو پھیلے ہوئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بڑی بیٹی کو کہیں سے ڈھونڈ کر لے آئیں۔ آخر اس نے یہ بے وقوفی کیوں کی ہے؟ انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو امیر ہونا چاہتی تھی اور احمر کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ اس کا شمار شہر کے سب سے بڑے بزنس مین میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے باپ کی زمینیں بھی تھیں۔ وہ اس کا باس تھا۔ اس نے پہلی ہی نظر میں فوزیہ کو دیکھا تھا اور اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ عزت کے ساتھ اس کا رشتہ لے کر آیا تھا اور آج ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی، مگر فوزیہ نے دغا دے دیا اور خاموشی سے رات کی تاریکی میں یہ گھر چھوڑ کر ہی چلی گئی۔ اب اس کے ماں باپ اور چھوٹی بہن وہاں بے بس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اکرام صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی بیوی کو حکم دے کر گئے تھے کہ اپنی چھوٹی بیٹی کو شادی کا جوڑا پہناؤ۔ فوزیہ کے بجائے احمر سے اس کا نکاح ہوگا۔ اب وہ اپنی چھوٹی بیٹی کی منتیں کر رہی تھی، مگر وہ ان کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اسے احمر بھائی سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، آج سے نہیں بلکہ اس دن سے جب اس نے احمر بھائی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ بہت عجیب و غریب انسان تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک رہتی تھی اور اس کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتی تھی۔ وہ کیسے ایسے انسان کے ساتھ گزارا کر سکتی تھی جسے دیکھ کر ہی اس کی روح خوف سے کانپ جاتی تھی۔ امی، میں آپ کے پاؤں پڑنے کو تیار ہوں، خدا کے لیے میرا نکاح ان سے مت کروائیں۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی ماں کے قدموں میں گر گئی۔ آمنہ بیگم تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے مجھ پر احسان کر دو اور اس شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا آپ نے ایک بھی بار سوچا ہے جب احمد بھائی میرا گھونگھٹ اٹھائیں گے اور انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ان کی بیوی فوزیہ نہیں بلکہ میں ہوں، تو وہ میرا کیا حال کریں گے؟ اب کی بار وہ شکایتی انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے بے ساختہ اسے نظریں چرائی۔ تب جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال تمہیں ہماری عزت رکھنی ہے۔ اگر تم ہمارے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتی ہو تو آج تمہارے پاس موقع ہے، بدلہ چکا دو۔ اس کی ماں نے تو جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ وہ اب خاموشی سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس سے احسانوں کا بدلہ مانگ رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آمنہ بیگم اس کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے گلے لگاتی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی ماں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ آپ کے احسانوں کا بدلہ چکا دوں گی، اس کے بعد میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں آپ کے لیے مر جاؤں گی۔ احمر بھائی میرے ساتھ جو کچھ بھی کرے اس کی ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں گی۔ اور خبردار، جو بعد میں آپ میں سے کوئی بھی مجھ سے ملنے کے لیے آیا یا کسی نے میرے ساتھ ہمدردی جتائی، آج سے آپ لوگ میرے لیے مر گئے ہیں اور میں آپ کے لیے مر گئی۔ اس کی آواز ہر قسم کے جذبے سے پاک تھی، جبکہ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ وہ ایک لمحے میں ہی ٹوٹ گئی تھی۔ آمنہ بیگم نے تڑپ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر بولی کچھ بھی نہیں۔
وہ بھی اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور تھی، ورنہ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کرتی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے تیار کیا گیا۔ ایک نظر اس نے خود کو شیشے میں دیکھا، وہ آسمان سے اتری کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بہت حسین تھی۔ اس کا حسن دیکھ کر اکثر اس کی سہیلیاں اسے کہتی تھیں کہ تمہارا شوہر تو ہر وقت تمہارے آگے پیچھے گھومتا رہے گا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ آفس میں بھی زیادہ دیر ٹکے گا۔ تب وہ ان کی باتیں سن کر شرما جاتی تھی۔ اب جب وہ یہ سوچتی کہ اس کا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ احمر ہے تو اس کا وجود خوف سے لرزنے لگتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا گیا اور اسے احمر کے پہلو میں لے جا کر بٹھایا گیا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا اور نہ ہی بے وقوف انسان تھا جو وہاں پر ہونے والے حالات کو نہ سمجھتا۔ اسے تو پہلے ہی خبر مل چکی تھی کہ اس کی محبوبہ اسے چھوڑ کر بھاگ چکی ہے۔ اب وہ صرف اور صرف اپنی محبوبہ کے گھر والوں کی چالاکیاں دیکھ رہا تھا۔ ایک نظر اس نے اپنے پہلو میں بیٹھی اس نادان لڑکی پر ڈالی جو اس کے انتقام کا نشانہ بننے والی تھی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے خوفزدہ نظروں سے اپنے داماد کی طرف دیکھا اور پھر اپنے شوہر کا بازو پکڑ کر خوف سے کہنے لگی، اگر اس نے ہماری بیٹی کو… چپ کر جا، کچھ نہیں ہوگا، وہ ہماری بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ مجھے اس سے امید ہے، وہ پڑھا لکھا انسان ہے، کوئی جہالت والا کام نہیں کرے گا۔ انہوں نے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ اپنی بیگم کو تسلی دی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اندر ہی اندر وہ خود بہت ڈرے ہوئے تھے۔ زویا ان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی جس میں ان کی جان تھی اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ مگر عزت کا سوال آ گیا تھا۔ اگر وہ اپنی بیٹی زویا کا نکاح اس سے نہ کرواتے تو نہ صرف ان کی بڑی بیٹی بدنام ہو جاتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کبھی چھوٹی بیٹی کا بھی اچھے گھر سے رشتہ نہ آتا۔ انہوں نے یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنی عزت اور اپنی چھوٹی بیٹی کی آنے والی زندگی کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ احمد نے ایک بار پھر بھی گھر والوں کو نہیں کہا کہ وہ ان کی بیوی کا گھونگھٹ اٹھائیں، کیونکہ وہ جانتا تھا گھونگھٹ کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے۔ کیا تمہیں اپنے آپ پر ذرا ترس نہیں آتا؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس کی طرف جھکا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کر ڈالی۔ یہ آواز سن کر وہ بے چین ہو گئی تھی۔ بے ساختہ اس نے پہلو بدلا تھا۔ تھوڑی ہی دیر یوں خاموشی کی نظر ہو گئی تو وہ پھر سے بولا، تمہیں میں کیا بے وقوف نظر آتا ہوں جو میں سمجھ نہیں پاؤں گا کہ اس گھونگھٹ کے پیچھے فوزیہ نہیں بلکہ زویا ہے؟ اب کی بار زویا کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ اس کا سانس بری طرح سے رک رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ گھونگھٹ کھینچ کر اتار دے۔ خدا کا شکر تھا کہ اسی وقت ہی کھانے کا شور اٹھا اور ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، اس رشتے سے انکار کر دو ورنہ میں تمہاری زندگی اجیرن بنا دوں گا۔ تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کبھی بھی تم خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ دونوں کا نکاح ابھی تک ہوا نہیں تھا۔ نہ جانے مولوی کہاں پر رہ گیا تھا۔ اکرام صاحب کوئی 5ویں بار مولوی کے بارے میں پوچھ چکے تھے۔ نہ جانے وہ کہاں رہ گیا تھا۔ دوسری طرف زویا کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ میں اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں نکاح سے منع کر سکتی ہوں، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ مگر آپ کے پاس موقع ہے۔ اس کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بے ساختہ ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے شاید ان دونوں کے درمیان کوئی خوشگوار گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر وہ ان کے درمیان میں ہونے والی باتیں سن لیتے تو اس وقت وہاں کوئی بھی پرسکون نہ بیٹھا ہوتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا؟ تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا، تم سے بے تحاشا محبت کروں گا۔ احمد اب اس کے کانوں میں غرا رہا تھا۔ میں نے ان سارے معاملات کے بارے میں نہیں سوچا اور نہ ہی میں سوچنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ میں یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنے والدین کے کہنے پر کر رہی ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ بعد میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ بے ساختہ اس کی بہادری پر رشک کرنے لگا۔ تم تو مجھے بہت ڈرپوک نظر آتی تھی، مگر تم تو حد سے زیادہ بہادر لڑکی ہو۔ تمہارے ساتھ کھیل کھیلتے ہوئے بہت مزہ آئے گا۔ خباثت سے کہتے ہوئے وہ پھر سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔
मौलवी को छोड़ दो, उसे हमारा निकाह पढ़ाने के लिए आने दो। दरअसल जिस मौलवी ने निकाह पढ़ाने के लिए आना था, इसी ने उस मौलवी को अगवा करा लिया था। जब जोया ने उसकी बातें सुनी तो उसे काफ़ी गुस्सा आया, मगर जानती थी कि गुस्सा करके अपनी ही ज़ात को तकलीफ़ पहुंचाएगी, इसीलिए खामोशी से बैठी रही। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ मौलवी आ चुका था। दोनों का निकाह पढ़ाया गया और निकाह के फ़ौरन बाद ही रुखसती की गई। इस वक्त वो उसके साथ गाड़ी में बैठी हुई थी जब वो खूनख्वार लहजे में बोला, अपना घूंघट उठाओ। उसकी बात सुनकर इसने अपनी गर्दन मजीद नीचे कर ली। लड़की, तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? मैं तुम्हें कह रहा हूँ अपना घूंघट उठाओ। अब की बार वो हलक के बल चिल्लाया था। गाड़ी चलाता हुआ उसका दोस्त परेशानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। क्या हो गया है यार? इसमें इस लड़की का क्या कसूर? इसे क्यों तंग कर रहे हो? वो ना सिर्फ उसका बहुत अच्छा दोस्त था बल्कि उसका भाई भी था। दरअसल अहमद का इस पूरी दुनिया में कोई नहीं था। वालिदैन का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। उसकी परवरिश उसकी पुप्पो ने की थी, जो गैर शादीशुदा थी, मगर कुछ ही अरसा पहले उसकी पुप्पो भी इस दुनिया से चली गई। उसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, गुस्से का तेज, एक मगरूर शहजादा था जो अपने मिजाज के खिलाफ कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करता था, और जो भी उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश करता तो वो उसे पारा पारा कर देता। खामोशी से गाड़ी चलाओ। उसने गुस्से से अपने भाई जैसे दोस्त को देखा और फिर खुद ही हाथ उठाकर अपनी बीवी का घूंघट उठा दिया। बिलाशुबा वो लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। उसके लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। तुम तो बहुत हसीन हो। जल्दी उसे अपनी एक और गलती का एहसास हुआ। वो इस वक्त अपने दोस्त की गाड़ी में बैठा हुआ था। गाड़ी रोको। उसकी आवाज़ सुनकर सरमद ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है? तुमने क्या करना है? वो परेशान हो गया। ज़्यादा सवाल जवाब ना करो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ गाड़ी रोको। उसके कहने पर सरमद ने गाड़ी रोक दी। अब गाड़ी से नीचे उतरो। यार क्या कर रहे हो? होश में तो हो। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग इस वक्त ठीक से काम नहीं कर रहा। सरमद ने बेचैनी से कहा तो वो खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। उसके साथ ही उसने फ्रंट वाला दरवाज़ा खोला। नीचे उतरो। उसने सरमद को नीचे उतरने का इशारा किया तो वो बेचारगी से उसकी मिन्नतें करते हुए कहने लगा, कुछ तो मुझ पर रहम करो। रात के इस पहर में कहाँ जाऊँगा? और ये तो एक वीरान इलाका है, छोटा सा गांव है। यहाँ से तो किसी बस या गाड़ी का मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। सरमद बोले चला जा रहा था जबकि वो गुस्से से उसे घूर रहा था। ठीक है यार, उतर रहा हूँ, इस तरह से घूरो तो मत। वो मुंह बनाते हुए नीचे उतर गया जबकि गाड़ी फराटे भरती हुई उसकी नज़रों से ओझल हो गई। दिल ही दिल में वो उसे बेतहाशा गालियां भी दे रहा था। उसके साथ ही वो आसपास कोई सवारी तलाश करने लगा, जो कि मुश्किल लग रहा था। वो अभी दुल्हन के घर से ज़्यादा दूर नहीं आया था, इसीलिए कुछ सोचते हुए दोबारा से जोया के घर की तरफ कदम बढ़ाने लगा, क्योंकि आज की रात उसे वहीं पर गुजारनी थी। अब वो दोनों गाड़ी में अकेले थे। तुम्हारी बहन किसके साथ भागी है? ये सवाल नहीं बल्कि कोड़ा था जो जोया के अपने वजूद पर लगता हुआ महसूस हुआ। उसने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली। ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं, जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। वो फ्रंट मिरर में उसके चेहरे को देखते गुस्से से बोला, मुझे नहीं पता कि वो किसके साथ भागी है। उसने निगाहें चुराते हुए कहा था। ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम उसकी अच्छी सहेली थी, हर बात वो तुम्हें आकर बताती थी, तो उसने ये भी तुम्हें ही बताया होगा। चलो हम दोनों एक डील करते हैं। अगर तुम मुझे उस इंसान का नाम बता दोगी तो कसम उठाकर कहता हूँ तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। उसने अब अपनी निगाहें उठाकर गुस्से से गुर्राते हुए कहा था। वो उसके गुस्से से महसूस होते हुए बोला, वाह मेरी ज़ौजा मोहतरमा को तो गुस्सा भी आता है। और फिर उसके साथ ही वो संजीदा हो गया।
मगर मेरे सामने अपनी आवाज़ नीची रखना, क्योंकि मुझे ऊंची आवाज़ में बात करने वाली औरतों से शदीद नफरत है। 1 घंटे के सफ़र के बाद वो बहुत बड़े बंगले के सामने मौजूद थे। नीचे उतरो। वो खामोशी से नीचे उतर गई, जबकि वो घर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसने एक बार भी अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा था। शर्मिंदगी की वजह से इसका चेहरा लाल हो गया। फिर कुछ सोचते हुए वो खुद ही उसके पीछे पीछे चलने लगी। ये ज़िंदगी उसने अपने माँ बाप की मर्ज़ी से चुनी थी और अब सारी ज़िंदगी उसने ऐसे ही रहना था। ये एहसास उसे बहुत तकलीफ़ दे रहा था। वो किसी की पसंदीदा औरत बनना चाहती थी, मगर अब किसी की अनचाही औरत बनकर ज़िंदगी गुजारने वाली थी। आखिर इससे बढ़कर और क्या बदकिस्मती हो सकती है, उसने तड़प कर सोचा। जब वो घर के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ पर पहले से एक बहुत खूबसूरत औरत मौजूद थी। वो इससे भी कहीं गुना हसीन थी। उस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी, जबकि इसका शौहर उसके पहलू में ही बैठा सिगरेट सुलगा रहा था। जोया को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, चलो जल्दी से यहाँ आओ और मेरी दोस्त से मिलो। उन दोनों को इस अंदाज में बैठा देखकर जोया को कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो दोस्त हैं, बल्कि उसे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा था। वो शर्मिंदा होती हुई सामने सोफे पर बैठी। इतना हैवी ड्रेस उठाना उसके लिए खुद मुश्किल था। वो बड़ी मुश्किल से चलती गिरती पड़ती आकर जब वहाँ बैठी तो उसके शौहर ने बेशर्मी की इंतहा कर दी। उसने अपना बाजू उस लड़की के कंधे पर रख दिया और उसका सर अपने सीने पर टिकाते हुए बोला, तुम्हें मैं अपनी बीवी से मिलवाना चाहता था। ये कहकर उसने जोया की तरफ इशारा किया। ये मेरी बीवी है, मगर मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मुझे इससे शदीद नफरत है। इसके वजूद से भी मुझे घिन महसूस होती है। मेरा बस चले तो इसे उठाकर किसी ऐसी जगह पर फेंक दूं जहां से इसकी वापसी नामुमकिन हो जाए। उसके लहजे में इस हद तक नफरत थी कि जोया को अपना आप पानी पानी होता महसूस हुआ। आखिर वो इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है, उसने बेसाख्ता सोचा था। तकलीफ से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, मगर उसकी आवाज़ अभी तक बंद नहीं हुई थी। वो औरत उसकी बात सुनकर बेचैनी से कहने लगी, तो फिर तुमने इससे शादी क्यों की? जोया के कान एक बार फिर से खड़े हो गए। वो इसका जवाब सुनने की मुंतज़िर थी, सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लेने के लिए। इस लड़की के घर वालों पर मैंने बहुत से एहसानात किए हैं और इसकी बहन से मैंने बेतहाशा मोहब्बत की, मगर इन लोगों ने मेरे एहसानात के बदले में मुझसे धोखा किया। तुम्हें पता है ना कि जो लोग मेरे साथ धोखा करते हैं उनका मैं क्या हाल करता हूँ। ये कहकर वो उस औरत के बालों के साथ खेलने लगा, जो कि औरत मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम उन लोगों को तबाह बर्बाद कर देते हो, तो फिर बस इस लड़की को भी तबाह करने के लिए यहाँ लाया हूँ। तुम देखो कि एक ही महीने में इसका क्या हाल करता हूँ। इसके अपने घर वाले तक इसे पहचानने से इनकार कर देंगे। उसको तकलीफ देकर इसकी बहन से इंतकाम लूँगा। तुम आज की रात मेरे पास ही ठहर रही हो ना? अहमर ने प्यार से उसके बालों को कान के पीछे अड़ाते कहा। दूसरी तरफ जोया को लगा था किसी ने उसके मुंह पर भरी महफिल में तमाचा मारा हो। वो उसकी बीवी थी, आज नई नई उसकी शादी हुई थी, मगर वो इस औरत की तरफ देखने के बजाय एक पराई औरत को सामने लाकर बिठाकर उससे प्यार भरी बातें कर रहा था। अहमर की बात सुनकर वो औरत खुशी से चीखते हुए कहने लगी, अगर तुम हुक्म करो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने के लिए तैयार हूं। तो फिर ठीक है, मेरे कमरे में जाकर आराम करो। मैं भी थोड़ी देर तक तुम्हारे पास आता हूं, फिर तुम्हें खुश करता हूं। ये कहकर वो अपने मुलाजिम को आवाज़ देने लगा, जो उस लड़की को उसके कमरे में लेकर चली गई। उसके बाद वो जोया की तरफ मुतवज्जो हुआ। तो मुझे बताओ तुम्हारा क्या करूं? तुम्हें तो मैं इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं हूं, मगर क्या करूं, इंतकाम भी तो लेना है। तुम ऐसा करो, आज की रात स्टोर रूम में गुजार लो। चलो उठो मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारा ठिकाना दिखा देता हूं, जो कि तुम्हारी औकात के मुताबिक है। क्योंकि तुम गरीबों पर जितने भी एहसानात करो, तुम गरीब सर पर चढ़कर नाचना शुरू कर देते हो। तुम लोगों को औकात में रखना बहुत ज़रूरी होता है।
یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، مگر زویا ابھی تک اسی جگہ پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے، جبکہ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے تڑپ کر سوال کیا۔ ارے میری جان، یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو ظلم کی شروعات ہوئی نہیں۔ جب شروعات ہوگی تب مجھ سے یہ سوال کرنا۔ وہ اس کی تھوڑی کو پیار سے بلند کرتے ہوئے بولا، چلو اب میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہیں نہیں جانا، میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اس کی اس قدر دیدہ دلیری پر احمر کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ تم اپنی اوقات میں تو ہو، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارا حق ادا کروں گا؟ میں نہ تو تمہیں اپنی بیوی تسلیم کرتا ہوں اور نہ کبھی کروں گا۔ تم صرف اور صرف ایک نوکرانی کی حیثیت رکھتی ہو، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور تم میرے لیے ایک کٹ پتلی ہو جسے میں اپنا انتقام لینے کے لیے استعمال کروں گا۔ جب دل چاہا کھیلا، جب دل چاہا پھینک دیا۔ اس نے اس قدر گندے لہجے میں کہا تھا کہ وہ شدت سے یہ دعا کر رہی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کم از کم اس طرح سے وہ اتنی ذلت سے تو بچ جاتی۔ احمد نے آپ کی بار زور سے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا اسٹور روم لے کر گیا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ظالم انسان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اسے اسٹور روم کے اندر پھینکنے کے بعد اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ دراصل یہ پرانا اسٹور روم تھا جو کہ کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ آج ہی اس نے اپنے ملازم سے کہہ کر وہ کھلوایا تھا۔ جب ملازم نے صفائی کرنے کا پوچھا تو وہ اسے منع کرتے ہوئے بولا، نہیں، صفائی کی ضرورت نہیں، بس جیسا ہے اسے ویسا ہی چھوڑ دو۔ اس اسٹور روم میں بہت سے چوہے بھی تھے۔ اب اسے چوہوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسے اس طرح کی چیزوں سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی اور اسٹور کا دروازہ بجا رہی تھی، مگر وہ اس کی چیخوں سے مکمل طور پر انجان آرام سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے ٹی وی کا والیوم بہت اونچا کر لیا تاکہ اسے وہ آوازیں بھی سنائی نہ دیں۔ دوسری طرف جویریہ کافی دیر سے اس کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب احمد کمرے میں نہ گیا تو وہ بے چین ہو کر اٹھی تاکہ اس سے پوچھے کتنی دیر ہے۔ جب وہ باہر گئی تو دیکھا وہ آرام سے ٹیک لگائے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے ٹی وی کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ احمد دھاڑا تھا۔ اسے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگر احمد نے اسے 2 بول پیار کے بول دیے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنی اوقات ہی بھول جائے۔ وہ جلدی سے سائڈ پر ہوئی اور اپنے لہجے میں دوبارہ سے پیار سموتے کہنے لگی، احمد جی، میں اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ کہاں پر رہ گئے؟ کہ آپ کو میری ذرا بھی فکر نہیں؟ وہ سمجھ رہی تھی کہ احمد اس سے پیار سے بات کرے گا اور ویسے ہی پیش آئے گا جیسا وہ زویا کے سامنے آ رہا تھا، مگر احمد کے تو تیور ہی بدل گئے تھے۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ پھر سے نفرت آمیز لہجے میں بولا، ایسے کیسے جا سکتی ہوں؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کمرے میں جا کر آپ کا انتظار کروں، آپ میرے پاس آئیں گے اور آج کی رات میرے ساتھ گزاریں گے۔ میں ایک ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ رہتی ہو، اسی لیے اپنا گھٹیا وجود اٹھاؤ اور میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ شرمندہ ہونے کی باری اب اس عورت کی تھی جو اپنے آپ کو بہت اہم سمجھنے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ احمد ہر کسی کو استعمال کرنا جانتا ہے اور اس کے لیے وقتی طور پر تعریف کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ جو خوش فہمی تمہارے دل میں پیدا ہوئی تھی اب اسے خود ہی کھرچ کر نکالو اور پھینک دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ احمد نے اس کے چہرے کی طرف طنزیہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ غصے سے پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ پوری رات احمد نے جاگتے ہوئے اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے گزاری تھی۔ اس لڑکی کو وہ بیاہ کر تو اس گھر میں لے آیا تھا، اب اسے کیسے تکلیف دینی تھی وہ اسی کے بارے میں سوچ بچار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے فوزیہ کی یاد آ رہی تھی جس سے اس نے بے تحاشا پیار کیا تھا۔ آخر فوزیہ نے اسے دھوکہ کیوں دیا؟ وہ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ صبح تقریباً 6 بجے کے قریب جا کر اس کی آنکھ لگی۔ جب وہ سو کر اٹھا تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ اس لڑکی کو یہاں پر آئے دوسرا دن تھا
और अभी तक वो स्टोर में बंद थी। अचानक उसे जोया का ख्याल आया। उसने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी और स्टोर का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। जब दरवाज़ा खुला तो वो गंदे फर्श पर बेहोश पड़ी थी। करीब ही छोटे मोटे काले रंग के चूहे घूम रहे थे। यकीनन वो उनके डर से बेहोश हो गई थी। अहमद ने उसे बेसाख्ता अपने बाजुओं में उठाया और अपने कमरे में लेकर गया। बड़े से जहाज़ी बेड पर उसे लिटाया। उसकी इस लड़की के साथ पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं थी। वो इस पर सिर्फ और सिर्फ फौजिया का गुस्सा निकाल रहा था। वो उसके करीब ही स्टूल रखकर बैठ गया और फुर्सत से उसका चेहरा देखने लगा, जिसे अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा बनाया था। वो किसी भी आदमी का ख्वाब बन सकती थी और किसी की पसंदीदा बीवी बन सकती थी, मगर उसने अहमद की नफरत की आग में जलने को तरजीह दी। काश तुम इन निकाह से इनकार कर देती तो अभी अपने माँ बाप के घर में पुरसकून जिंदगी गुजार रही होती। तुमने अपने साथ खुद बहुत बड़ा जुल्म किया है माय डार्लिंग। वो उसके बालों को समेटता हुआ बोला। दूसरी तरफ लम्स महसूस होने की वजह से वो कुसमिसाई थी, मगर होश में अभी भी नहीं आई थी। कुछ सोचकर अहमद अलमारी की तरफ बढ़ गया, जहाँ से उसने एक लूज सा ड्रेस निकाला और उसके कपड़े तब्दील किए। उसके साथ उसकी ज्वेलरी उतार कर दराज पर रख चुका था। जब उसे होश आया तो वो दूसरे कपड़ों में मलबूस थी और अहमद के कमरे में थी। शर्म की वजह से उसके गाल लाल हो गए थे। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूछ सके कि उसके कपड़े किसने तब्दील किए, इसलिए खामोशी को तरजीह दी। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला था। एक बार फिर से वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। तुम कब मुझे फौजिया के बारे में बता रही हो? वो तुम्हें अपना कोई कांटेक्ट नंबर तो देकर गई होगी। तुम ऐसा करो, मुझे वो नंबर दे दो, मैं इस तरह से उसे तलाश कर लूँगा। मैं कसम उठाकर कहती हूँ उसने मुझे कुछ नहीं बताया। एक बार फिर से वो रोने लगी। अहमद ने उसे बालों से पकड़ा और उसके सर को झटकते हुए बोला, मुझे रोने वाली औरतों से भी शदीद नफरत है। अपनी आवाज़ को बंद करो, वरना तुम्हारी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। उसने फ़ौरन से अपनी सिसकियों को कंट्रोल किया और अपनी उंगली अपने होठों पर रखकर रोने से बाज रहने की कोशिश करने लगी। मगर दिल के गम का क्या करती जो उसके सीने को छलनी कर रहा था। उसे लग रहा था अगर ये गम आंसुओं के रास्ते ना निकला तो उसको फना कर देगा। क्या आप सारी जिंदगी मेरे साथ ऐसा सलूक करते रहेंगे? न जाने उसके जहन में क्या आया था जो उसने ये सवाल कर दिया। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें इस तरह का सवाल पूछने की ज़रूरत है। जो हाल तुम्हारा अभी है यही हाल तुम्हारा बाद में भी होगा। वो खुलकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या आपको कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती? फिर से उसने अनजाने अंदेशे के तहत सवाल कर दिया था। इस पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे अब किसी भी औरत से मोहब्बत नहीं हो सकती, क्योंकि औरत जात ही फरेब का नाम है। तुम औरतें इस काबिल ही नहीं होती कि तुम लोगों से प्यार किया जाए, तुम लोगों से भरोसे की उम्मीद की जाए। तुम लोगों को औकात में ही रखना चाहिए। मगर आप ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक औरत की वजह से कह रहे हैं, और वो औरत तुम्हारी बहन थी। अहमद ने उसकी बात काट दी। उस बेचारी को अपने तमाम सवालात का जवाब मिल चुका था। उसके साथ ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा था क्योंकि वो फौजिया की बहन थी। उस दिन उसे इस बात पर पछतावा हुआ था कि काश वो फौजिया की बहन ना होती, या काश वो इकराम साहब की बेटी ना होती, तो आज वो इतनी जिल्लत ना उठा रही होती। मैं तुम्हें यहाँ पर महारानी बनाने के लिए नहीं लाया। तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम इस घर की नौकरानी हो और बाकी नौकरानियों के साथ मिलकर काम किया करोगी। चलो उठो, मेरे साथ नीचे किचन में चलो। आज शाम के वक्त मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं जिनके लिए खाना तुमने बनाना है, और खाने में किसी भी किस्म का कोई मसला किया तो उसकी सज़ा तुम्हें बाद में दूंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो भी छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे ही किचन में चली गई। ज़रमीना साहिबा, ये लड़की आज के बाद इसी घर में काम करेगी। आप इसको हवेली के सारे कामों के बारे में बता दें और इसे अच्छी तरह से समझा दें कि मुझे ज़रा सी भी गंदगी पसंद नहीं है, और ना ही मुझे गंदा काम करने वाली औरतें पसंद है।
मैं इसे इस हवेली से निकाल तो नहीं सकता, लेकिन आप इसे बता सकती हैं कि मैं नापसंदीदा लोगों को किस तरह की सजाएं देता हूं। वो उसे सर से लेकर पांव तक घोर रहा था और उसे एक नौकरानी से मुतारिफ करवा रहा था, वो भी एक नौकरानी के तौर पर, कि उससे बढ़कर कोई और जिल्लत का मकाम होगा। एक बार फिर से उसने सोचा और जवाब नफ़ी में आया था। इससे बढ़कर जिल्लत का और कोई मकाम नहीं हो सकता कि आपका शौहर ही आपकी इज्जत ना करे और ना ही किसी और को आपकी इज्जत करने की हिदायत करे। ज़मीना साहिबा को बेसाख्ता उस छोटी सी लड़की पर रहम आने लगा जो अपनी बहन की वजह से एक जालिम इंसान के जुल्म का निशाना बन रही थी। साहब जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं इन्हें सब कुछ सिखा दूंगी, उसने अपने साहब को तसल्ली दी थी। थोड़ी ही देर के बाद वो वहां से चला गया। ज़मीना साहिबा ने उसे अपने गले से लगाया। जोया को उनसे इस हरकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, मगर जब उसे ज़रा सा सहारा मिला तो वो भी बिखर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे साहब दिल के बुरे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर अभी गुस्से में हैं। देखना, जैसे ही उनका गुस्सा ठंडा होगा उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। वो तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे। बस ज़रा सा मुश्किल वक्त है, किसी तरह से सब्र कर लो। सब्र का फल बहुत मीठा होगा। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। वो उसे तसल्लियाँ और दलासे दे रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो किचन से गया नहीं, बल्कि किचन के दरवाजे पर ही खड़ा है। ज़मीना साहिबा, मैंने इसको आपके हवाले इसलिए नहीं किया कि आप इसका दर्द बांटना शुरू कर दें। अगर आपको इसका दर्द इतना ही महसूस हो रहा है तो आप मुझे बता दें, मैं आपको इसके साथ ही भेज देता हूँ। साहब की आवाज़ सुनकर वो दोनों अपनी जगह पर उछल पड़ी थी। नहीं नहीं साहब जी, मैं तो वैसे ही, वो हकलाते हुए कहने लगी। मेरी हवेली में यूं नहीं बल्कि सोच समझ कर काम किए जाते हैं। दोबारा जब यहाँ पर आऊँ तो आप मुझे इसका दर्द बांटती नजर ना आए, और अगर मैंने कभी इसे फारिग बैठे देखा तो मैं आपसे ही भी हिसाब लूँगा। जहाँ तक मुझे पता है ये नौकरी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पेट आपने इस नौकरी की वजह से पालना है। अगर आपके हाथों से ये चली गई, ज़मीना साहिबा उससे कहना चाहती थी कि रिस्क देना तो अल्लाह के हाथ में है। अगर ये नौकरी चली गई तो कोई और मिल जाएगी, मगर वो फ़िलहाल अपने साहब के गुस्से में इजाफा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने खामोशी को ही बेहतरीन जवाब समझा। उसके जाने के बाद वो उसे अपने साथ ही काम पर लगा चुकी थी। क्योंकि जोया एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी और वहाँ पर नौकरों का कोई रवाज नहीं था। सारे काम खुद करने पड़ते थे, यहाँ तक कि वो अपनी बहन फौजिया के हिस्से के काम भी खुद ही करती थी। मगर कभी भी उसने बुरा महसूस नहीं किया था, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार उसे इस हवेली में काम करते बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो एक नौकरानी की हैसियत से काम कर रही थी। शाम 5 बजे के करीब मेहमान वहाँ पर आना शुरू हो गए। वो बड़े बड़े अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, बिजनेसमैन थे, जिनके साथ उनकी बीवियाँ भी थीं, और वो बड़ी खुशी से अहमद से अपनी बीवियों का तारुफ करवा रहे थे। वो भी उनसे मुसाफिहा कर रहा था। कितने बेशरम लोग हैं, उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। उसके इस अंदाज पर ज़मीना बेगम मुस्कुराते हुए कहने लगी, जब तुम्हारे अपने शौहर के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे फिर उसके अच्छे तरीके से कान खींचना। ज़मीना साहिबा, आप किस तरह की बातें करती हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब हम दोनों के दरमियान कभी ठीक नहीं हो सकता। मुझे सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी होगी। मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया है। बहुत ही गलत बात है। मुझे तुमसे बिल्कुल इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हें एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की समझती थी, मगर तुमने तो अजीब जाहिलों वाली बात कर दी। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो अपने शौहर को अपनी खूबसूरती और मासूमियत की वजह से अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो, मगर उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। और मुझे यकीन है कुछ ही अरसे के बाद तुम इस घर में रानी बनकर राज करोगी और उसके साथ साथ अपने शौहर के दिल को जीतने में भी कामयाब हो जाओगी।
वो दोनों एक दूसरे के साथ बातों में मसरूफ थी जब मुलाजिम किचन के अंदर दाखिल हुआ और दोनों को गुस्से से देखते हुए कहने लगा, साहब कह रहे हैं बाहर खाना लगा दो। जोया बहुत खूबसूरत थी। इस वक्त उसने कॉटन का सादा सा लिबास पहना था, लेकिन उस लिबास में भी उसका हुस्न वाज़िह हो रहा था। वो दूसरी मुलाजमा के साथ मिलकर बाहर खाना लगा रही थी जब अहमद के करीब खड़े एक बिजनेसमैन ने जोया को सर से लेकर पांव तक देखते अहमद से पूछा, ये खूबसूरत हसीना तुम कहाँ से लाए हो? अहमद ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। उसने खुद ही तो जोया को बाहर खाना लगाने के लिए कहा था और अब उसे इस आदमी की बात पर गुस्सा नहीं आना चाहिए था। उसने अपने आप को नॉर्मल करने की हर मुमकिन कोशिश की और सरसरी अंदाज में कहने लगा, ये ज़रमीना साहिबा की ही एक जानने वाली है। काम की ज़रूरत थी बेचारी को, तो मैंने अपनी हवेली में काम दे दिया। अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो क्या मैं इसे अपनी हवेली में लेकर जा सकता हूँ? क्योंकि आजकल मेरा काम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ये मेरे काम में भी हाथ बटा देगी। उसने अजीब से मायने खेज अंदाज में अहमद की तरफ देखते कहा था। नहीं, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वो दो टोक अंदाज में कहता हुआ गुस्से से जोया की तरफ बढ़ा और उसका बाजू पकड़कर उसे साइड पर लेकर गया। क्या ज़रूरी है हर किसी को अपने हुस्न का दीदार करवाना? वो उस पर चीखते हुए पूछने लगा, जबकि वो इसके सवाल पर ही हैरान रह गई। आपने खुद ही तो कहा था कि मैं बाहर खाना लगाऊं, उसने बेचारगी से कहा। खाना लगाने के लिए कहा था, गैर मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए नहीं कहा था। मगर मैंने तो अपने सर पर दुपट्टा भी किया था। उसने एक आखिरी एहतजाज किया था। तुम्हें कितनी बार समझाया है, मुझे ज़बान दराजी करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी ज़बान बंद करो। जो कुछ समझा रहा हूँ वो समझो। समझ लग रही है तुम्हें? वो उसके बाजू को झटकते हुए बोला तो वो मासूमियत से अपना सर झुका गई। अब दोबारा इन लोगों के सामने मत आना, वरना जान से मार दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। ज़रमीना साहिबा मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। देखा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम्हारा शौहर जल्द ही तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा। क्या मतलब है आपकी इस बात का? वो मुझे डांट कर गया है, और वो भी ऐसी बात पर और ऐसी गलती पर जो मैंने की ही नहीं। तुम ये तो देख रही हो कि वो तुम्हें डांट कर गया है, ये क्यों नहीं देख रही कि उसने तुम्हें क्यों डांटा है? ज़रमीना साहिबा ने प्यार से उसके गालों को छूते कहा। वो भी अब गहरी सोच में डूब गई थी। वो उसे इसलिए डांट रहा था क्योंकि गैर मर्द उसे घूर रहे थे। अगर उसे कभी जोया की ज़ात से दिलचस्पी ना होती तो वो उन मर्दों की नज़रों की परवाह भी ना करता। जोया को अब बात समझ में आ गई थी, इसलिए अब वो धीमे से अंदाज में मुस्कुराने लगी। सारे मेहमान खाना खा चुके थे, जबकि वो दोनों अभी तक किचन में मौजूद थी। जोया का सामान ज़रमीना साहिबा के ही कमरे में लगा दिया गया। उसने फैसला किया था कि आज के बाद वो ज़रमीना साहिबा के साथ ही सोएगी। उसे वो सादा सी औरत बहुत अच्छी लगी थी। वो इसके मिजाज के साथ मैच करती थी। वो किचन में खड़ी सामान सेट कर रही थी जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो वहाँ पर दिलावर खान नामी एक शख्स खड़ा था। ये वही आदमी था जो कि थोड़ी देर पहले तक अहमद से जोया के बारे में सवाल कर रहा था। वो बहुत अजीबोगरीब गंदी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? उसकी नज़रों से खाइफ होते हुए जोया ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। जी, मुझे इस वक्त एक चीज़ की शिद्दत से ज़रूरत है। ये कहकर उसने जोया को सर से पांव तक घूरा। वो छोटी बच्ची नहीं थी जो उसकी नज़रों के मफ़हूम को समझ ना सकती। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप ज़रमीना साहिबा को बता दें। ये कहकर वो उसके पहलू से गुजरने ही लगी थी कि दिलावर ने यकदम उसका बाजू पकड़ लिया। मुझे ज़रमीना साहिबा से नहीं, मुझे आपसे काम है, और जो कुछ मुझे चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ आप दे सकती हैं। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ा था। उन दोनों के दरमियान सिर्फ और सिर्फ चंद इंच का फासला था। वो उसके कानों में झुका। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक रात मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। जोया ने गुस्से से उसे पीछे की तरफ धकेला। अहमद जो कि बाहर दिलावर को ही तलाश कर रहा था,
जब उसने देखा कि वो कहीं नहीं है तो उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। किचन में गया तो वो उसकी बीवी को तंग कर रहा था। जलील इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो उसके ऊपर बैठ गया और उसे मारने लगा, जबकि वो थोड़े ही फासले पर खड़ी खौफ से थर थर कांप रही थी। बाकी सब लोग भी हैरान थे कि वो लड़की जिसे थोड़ी देर पहले तक उसने सब लोगों से अपनी नौकरानी कहकर मुतारिफ करवाया था, वो इसकी बीवी निकली थी। मीडिया वाले अलग चहमगोइयाँ करने लगे थे। उनको एक हॉट टॉपिक मिल गया था। उसके गार्ड्स ने सबसे पहले उनको वहाँ से निकाला। उसके बाद अहमर को पीछे की तरफ धकेला। अगर वो इंसान मर जाता तो अहमर के ऊपर कत्ल का केस आ जाना था और फिर उसे इस सब से कोई बचा नहीं सकता था, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके चश्मदीद गवाह थे। जोया और जरमीना को भी वो वहाँ से भेज चुका था। रात के वक्त सब लोगों को और पुलिस को निपटाने के बाद वो एक बार फिर से घर के अंदर दाखिल हुआ। अपनी जहनी हालत से वो खुद बहुत परेशान हो गया था। एक तो वो उसका चेहरा नहीं देखना चाहता था और दूसरी तरफ जब भी कोई उसकी बीवी की तरफ नज़र उठा कर देखता तो उसका दिल दुखता था। आखिर इस सब की वजह क्या थी, वो समझ नहीं पा रहा था। जोया को लग रहा था आज वो उसे जान से मार देगा, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसे कुछ नहीं बोला। उसने अपनी बीवी से किसी किस्म की कोई बात नहीं की थी। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। अब वो इसकी ज़ात में दखल अंदाजी नहीं करता था और ना ही इस पर किसी किस्म का जुल्म करता था। वो खामोशी से पूरा दिन जरमीना के साथ काम करवाती रहती और रात के वक्त अपने कमरे में जाकर लेट जाती। एक दिन वो लेट घर आया तो वह अभी तक किचन में ही मौजूद थी और बर्तन धो रही थी। तुम रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें आराम करने का दिल नहीं करता? अहमर के सवाल पर उसने बेसाख्ता नजरें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। आपका हुक्म है कि जब तक किचन का सारा काम ना कर दूं तब तक मैं सो नहीं सकती। क्या तुम इतनी फरमाबरदार हो कि मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरे हुक्म मानती हो? उसे थोड़ी सी हैरानगी हुई थी। अगर वो चाहती तो सारे बर्तन यहीं पर छोड़कर सोने जा सकती थी, क्योंकि अहमर घर पर मौजूद नहीं था। मगर उस लड़की ने इसकी गैर मौजूदगी में भी अपना काम जारी रखा हुआ था। मैं अपने कामों के मामले में हमेशा से ईमानदार हूँ और बेईमानी से मुझे शदीद नफरत है। तो फिर तुम्हारी बहन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ना चाहते हुए भी वो शिकवा अहमर के लबों पर आ गया था। मैं नहीं जानती कि इसकी वजह क्या थी, मगर उसने ये करके अपने साथ मुझ पर भी बहुत बड़ी ज्यादती की है। आप जैसे अच्छे इंसान को छोड़ना ही उसके लिए उसके किए की सज़ा है। अहमर यकदम ही खामोश हो गया था। इस लड़की पर वो ज़्यादा जुल्म कर रहा था। उसको उसके माँ बाप से दूर रखा हुआ था। उसने नफ़रत का इजहार करता था और उसे गालियाँ देता था, उसे मारता था, मगर उसके बावजूद भी वो उसे अच्छा इंसान कह रही थी। बिलाशुबा वो आला ज़र्फ़ की मालिक थी और उसकी तरबियत भी एक अच्छी माँ ने की थी। जल्दी से काम ख़त्म करके मेरे कमरे में आओ। हुक्म सुनाता हुआ वो वहाँ से जा चुका था, जबकि वो लरस कर रह गई। जरमीना के कहने पर ही उसने ऐसा किया था। दरअसल उसने ही जोया को समझाया था कि अपने शौहर के सामने उसकी तारीफ़ करना, वो तुम्हारे साथ जितना भी बुरा करे तुमने शिकायत नहीं करनी, बल्कि उसकी अच्छाइयाँ तलाश करनी है और उसे उसकी अच्छाइयों के बारे में बताना है। इस तरह से वो मुतासिर होगा और तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देगा। वो सिर्फ ये चाहती थी कि अहमर उसके बारे में सोचे। उसे क्या पता था कि वो उसे फ़ौरन से अपने पास बुला लेगा। जब वो उसके कमरे के अंदर दाखिल हुई तो वो बेड के साथ टेक लगाकर बैठा था। उंगली से उसे अपने करीब आने का इशारा किया। वो उसके कदमों में जाकर बैठ गई। मेरे पाँव दबाओ। अहमर के कहने पर उसने फ़ौरन से उसके पाँव दबाना शुरू कर दिए तो वो अजीब से अंदाज में हंसते हुए पीछे की तरफ हटा और फिर उसके चेहरे को देखकर हंसता चला गया। जोया को उसकी जहनी हालत पर शक होने लगा था। तुम वाकई बहुत अजीब हो जोया,
तुम ने मुझे अपने बारे में ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया है। तुम्हें पता है, आज से पहले मैंने कभी किसी औरत की ज़ात में दिलचस्पी नहीं ली। यहाँ तक कि मैंने कभी फौजिया के बारे में भी इतना नहीं सोचा था। वो लड़की बस मुझे पसंद थी और मैं उससे शादी करना चाहता था, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। मगर तुम बहुत मुनफरिद हो, तुम बाकी सब लड़कियों से अलग हो। तुम में न जाने ऐसी कौन सी कशिश है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता और ना ही तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ सकता हूँ। और अब तो मुझे फौजिया के बारे में भी पता चल गया है। ये कहकर उसने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली थी। फौजिया से उसकी मुलाकात उसके ऑफिस में हुई थी। वो इसके ऑफिस में जॉब करने के लिए आई थी, मगर फिर एक दूसरे अमीर शख्स के लिए वो इसे छोड़कर चली गई। जिस अमीर शख्स से उसने शादी की थी, उसने भी फौजिया को धोखा दे दिया था। उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो इस फानी दुनिया से कूच कर गई। मगर अहमद को उसकी मौत पर भी अफसोस नहीं हो रहा था। उसे अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर अफसोस हो रहा था कि उसने जोया जैसी मासूम लड़की को परेशान किया। उसने अपनी आंखें खोली जो कि तकलीफ की वजह से लाल हो रही थी। जोया को बेसाख्ता उस पर तरस आया। आपकी कोई गलती नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं उसे भूल गई हूँ। और अब तो मुझे छोड़कर चली जाओगी ना, बाकी सब लोगों की तरह? पहले अम्मा अब्बा मुझे छोड़कर चले गए, फिर फौजिया मुझे छोड़कर चली गई, और अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? वो एक अजीब से अंदाज में चिल्लाते हुए बोला था। वो इस वक्त दर्द में डूबा हुआ मालूम हो रहा था। जोया तेजी से आगे बढ़ी और उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोली, मैं कसम उठाकर कहती हूँ, आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है, आप ही मेरा सब कुछ हैं। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, ये सब कुछ तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो। वो छोटे बच्चों की तरह उसे शिकायत कर रहा था। जोया समझती थी कि वो हद से ज़्यादा मगरूर और जालिम इंसान है, मगर आज उसे मालूम हो रहा था कि वो अंदर से एक छोटा सा बच्चा है और बच्चों की तरह ही खौफजदा रहता है तन्हा हो जाने से। जोया ने यकदम उसे अपने गले से लगा लिया तो वो छोटे बच्चों की तरह रोने लगा। जोया प्यार से उसकी कमर को थपक रही थी। वो इंसान जो कि दूसरों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देता था और जिसकी एक धाड़ पर लोग कांप जाते थे, वो इस वक्त अपनी पसंदीदा औरत के गले लगकर अपने गम को हल्का कर रहा था। मैं नहीं जानता मुझे कब तुमसे मोहब्बत हो गई, और ये मोहब्बत जानलेवा होती जा रही है। तुम मुझे अपने दिल के बहुत करीब मालूम होती हो। मैं अब तुम्हें अपने ख्वाबों में भी देखने लगा हूँ। उसने अपना सर उसके कंधे से उठाया और मासूमियत से कहने लगा, यानी अब आप मुझ पर कोई जुल्म नहीं करेंगे? अब आपने मुझे माफ़ कर दिया है? जोया पुरजोश अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। वो 16 साल की लड़की जो अब काफ़ी समझदार हो गई थी और एक 28 साल के मर्द को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसी नादान और छोटी सी लड़की से इतना प्यार कर बैठूंगा। फिर से अपनी टोन में वापस आ गया था और हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। जोया ने बेसाख्ता दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। वो इसी तरह से हंसते हुए ही अच्छा लगता था। मैं अपनी अम्मी अब्बा से मिलना चाहती हूँ। वो जो खुद से वादा करके आई थी कि कभी अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देखेगी, मगर जब उसे ज़िंदगी की पहली खुशी मिली तो अपनी माँ की याद आई। ठीक है, चलो चलते हैं। हम इस वक्त जाएंगे? हाँ, तो क्या मसला है, अपनी गाड़ी है। जब वो दोनों एक साथ मुस्कुराते हुए घर के अंदर दाखिल हुए तो अकराम साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बेटी की मौत की खबर उन्हें पहले मिल चुकी थी और वो उस पर अफसुर्दा भी थे, मगर उस अफसुर्दगी को अब उनकी छोटी बेटी की खुशियों ने ख़त्म कर दिया था। आमना बेगम ने भी पुरजोश अंदाज में उसे गले से लगाया। जब उन्हें पता चला कि सब कुछ ठीक हो गया है, अहमद ने उसे माफ़ कर दिया है, तो वो भी खुशी से रो पड़ी। वो दोनों तकरीबन 2 घंटों तक वहाँ पर बैठे रहे थे और अब उनका लॉन्ग ड्राइव पर जाने का इरादा था। उन दोनों ने एक दूसरे से
बहुत सी बातें करनी थी। एक दूसरे को अपने दिल के हालात के बारे में बताना था, फ्यूचर की प्लानिंग करनी थी और एक दूसरे के दुख दर्द को सुनना था, एक दूसरे को समझना था। गाड़ी मंजिल की तरफ रमा दमा थी और एक दूसरे से बातों में मसरूफ थे। चांद उनकी खुशियों पर मुस्कुरा रहा था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।